Welcome back, Roy. Yesterday, the streets of the national capital became the stage for yet another showdown between the Congress party and the Bharatiya Janata Party over the Parliament assault gate. Now, the tense atmosphere outside the Parliament building, in fact, started with the protest banners and chants as the Congress party and the Bharatiya Janata Party staged protests against each other over December 19th clashes in which two BJP MPs and the Congress chief got injured. But in a sensational new twist, Congress leaders and its allies remain in disbelief as Samajwadi Party MP Ram Gopal Yadav has said that fake bandages were used to show blood and fake reports were given by the doctors of the RML hospital. Something which was echoed by the Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav as well. Listen in to believe it. फरक्काबाद वाले तो नकली सर्टिफिकेट से जीत करके आए हैं, केवल सर्टिफिकेट से जीते हैं वो। और मैं तो कहूँगा उनके इलाज के लिए हम लोग मदद करना चाहते हैं। और आपको भी पता होगा कितनी किसको चोट लगी, आपसे बेहतर कौन है, सब कैमरे आपके पास हैं। अब आपका चेहरा भी बता रहा है कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। सर, कल दोनों तरफ से कंप्लेन दी गई। कांग्रेस की कंप्लेन पे अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। अटेम्प्ट टू मर्डर तक का सेक्शन के लिए बोला था बीजेपी ने, वो लगाया नहीं गया है। आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में आगे क्या होगा? देखिए, कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ, कोई राहुल गांधी ने धक्का नहीं दिया, सब फर्जी बनाया गया है ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाए। बाबा साहब के जो अपमान हुआ है उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए नई साजिश हुई है। सर, लेकिन चोटें तो आई हैं, अस्पताल में एडमिट है। तो आने का चोट का अस्पताल में पट्टी बांध दो और वो बीटाडीन डाल दो, चोटी खून ही खून दिखाई पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है ये फेक है सर? सब फर्जी। बट सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी आई है सर। अरे डॉक्टर भी डॉक्टर, आप नहीं जानते आज इस देश में क्या हो रहा है। डॉक्टर तो बहुत मामूली चीज है कि सारे पे वो जिसके चोट नहीं लगी उसको कहते तो मर गया है। सारे शीर्ष के नेता बीजेपी के गए, मुलाकात की उन्होंने। अरे वो ड्रामा इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान हट जाए, लेकिन ध्यान नहीं हटेगा। सारे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, सारे देश में कहां तक ये करेंगे। And opposition MPs are also going after the MP from Nagaland, who you remember spoke out against Rahul Gandhi's misconduct and claimed how she felt uncomfortable by his behavior in Parliament. Now, MPs from the Congress Party, Sena UBT and Samajwadi Party are saying that BJP is using her to make false claim to malign Rahul Gandhi. Have a look. I think it was a big sham. I think that to have used that lady MP from Naga, it was disgusting. Disgusting, shameful. And I'm so upset that she decided to get used. It was a man-made, created incident. They were stopping people from going up the steps. I'm witness to it. सर, एक महिला सांसद की तरफ से जिस तरीके से एलिगेशन लगाए गए हैं, बीजेपी की वो एमपी है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही घटिया, सतही जिस तरह की एफआईआर लिखी गई है या जिस तरह के आरोप लगाए हैं वो बहुत ही घटिया और सतही है। मैं यही कह सकता हूं, ये बहुत ही घटिया है। Our protest was to get the Home Minister to resign or to apologize to the nation for his absolute arrogance, for his absolute disregard for the sentiments of millions of people who believe in Baba Saheb Ambedkar, for mocking Baba Saheb Ambedkar. We demand an apology from him, and as a diversionary tactic, they've tried to file this FIR, which is absolutely incorrect, unethical, undemocratic, unconstitutional. A woman MP has also made an allegation that she felt very uncomfortable because of Rahul. We were all there, and I can tell you one thing for a fact, that Mr. Rahul Gandhi would never do something like that to intimidate a woman, and we all have been witness to how they were pushing Priyanka Gandhi Vadra. They pushed even Mallikarjun Kharge ji, and this seems to be an afterthought to use a woman to make an allegations against Mr. Rahul Gandhi. Now, after these comments, BJP leaders are up in arms against the Congress party and its allies for making such allegations and discrediting the Nagaland MP. Have a look. इस देश की एक बेटी ने इतनी संगीन और इतनी गंभीर बात उठाई हो, माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी उसको ट्रिविलाइज करने का
का एक रवैया अपना रहे हैं, ये कह के कि एक डिविजनरी टैक्टिक है। मैं पूछना चाहती हूँ, आदिवासी समुदाय की जब आप बात करते हैं चुनावों के नजदीक, तो वो केवल एक चुनावी जुमला है क्या? आदिवासी बेटी का अपमान करा है उन्होंने। कल सदन में खड़े होकर कोन्याक जी ने शिकायत करी है, ये मुद्दा उन्होंने उठाया है। शी फेल्ट अनकंफर्टेबल। उनके साथ जिस तरह का शर्मसार करने का रवैया श्री राहुल गांधी जी ने अपनाया है, उसको इतनी उद्दंडता से वो डिफेंड कैसे कर सकते हैं? उनको क्षमा मांगनी चाहिए कोन्याक जी से। एफआईआर दर्ज करा दी है, पुलिस इस पे जांच करेगी। राहुल गांधी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए, एससी, एसटी, ओबीसी समाज से और साथ ही महिलाओं से। नॉन बेलेबल जो है वो धाराएं भी लगी है राहुल गांधी पे एफआईआर में। आपको लगता है कि अरेस्टिंग हो सकती है उनकी जल्दी? ये पुलिस को करना है। हमने कंप्लेंट दर्ज करा दी है, एफआईआर हो गई है, आगे पुलिस का काम है। हमें पूर्ण विश्वास है उचित जांच करेंगे। किस चीज का ध्यान भटकाने का? कोन्याक जो है नॉर्थ ईस्ट की महिला सांसद, उसके साथ आप जो है पुरुष और महिला के भेदभाव के बीच में जो है बीच घुस जाओगे। आपको पता ही नहीं कि वो महिला है, आप पुरुष। आप प्रताप सारंगी जैसे बूढ़े को जो है धक्का दे दोगे, सांसद को धक्का दे दोगे, संतोष पांडे जी को धक्का दे दोगे, आप मुकेश राजपूत जी को धक्का दोगे, और उसके बाद आपको लगता है कि हम ये कर रहे हैं, ये धक्का हमने दिया क्या? लड़ाई झगड़ा करने हम गए क्या? आज तक कभी भी पार्लियामेंट में ऐसा नहीं हुआ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है और उसके बीच में जो है कोई ऑपोजिशन घुस जाए। हम भी नहीं घुसे, हमने पक्ष और विपक्ष सभी की राजनीति की है। Now listen in to the Bharatiya Janata Party MP from Nagaland who went on to claim that Rahul Gandhi came in close proximity to her and shouted at her during the protest that took place in the parliament on December 19th, which made her feel uncomfortable. Listen in to what she said. जैसे हुआ है अच्छा नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोटेस्ट तो सब पार्टी करते हैं। तो सिक्योरिटी लोग कॉर्डन ऑफ करके रखा था, वहाँ जाना था, तो ऐसे आगे धक्का, लाइक ऐसे क्लोज फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में आके अनकंफर्टेबल लगा, अच्छा नहीं लगा। फिर चिल्लाना। आपके पास कौन आया? राहुल गांधी जी आके ऐसे चिल्लाना, वो अच्छा नहीं है, वो नियम तरीका नहीं होता है कि हम लोग कोई आता है तो हम साइड देते हैं, तो हम कहा जाएगा इतना सारा ऐसे था ना, सामने में था, ग्रुप में थे। तो जब वो आपके पास आए तो क्या महसूस हुआ? आपको कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा, अनकंफर्टेबल लगा। फिर आपने क्या सोचा कि आप साइड में हो जाएं? मैं साइड में गए, तो फिर उस टाइम थोड़ा, क्योंकि बहुत धक्का हो रहा था, तो थोड़ा साइड में ऐसे करके। Now, the Bharatiya Janata Party has said that opposition parties have made mockery of the two injured MPs and also this lady MP from Nagaland. We'll get you more on this right after this short break.